A very good evening to all my dear students of class 12B. In the morning time, I shared a video. I prepared a video, and I think this is the last video of the first chapter. And by today, I'll finish my first chapter. And please, one who has not seen this, one who is not watching this video, these videos are hereby requested to please kindly watch these videos, okay? And so that you can understand the main concept of the chapter, so you are requested to watch these videos. And in afternoon time, in morning time, I prepared a video for you. And right now, this is the final final heading of the chapter. So I am right now page number 22, problems of piecing together the past, है ना? Now such a kind of question comes in your examination, that when an archaeologist studies about the past, then what kind of problem does he feel? So in this chapter, in this particular heading, we are going to discuss that what kind of problem does an archaeologist feel. This is a very important question, often comes in the examination, okay? So please, we should study it. As we have seen, it is not the Harappan script that helps us in understanding the ancient civilization. Rather, it is material evidence that allows archaeological better reconstruct Harappan life, है ना? This is a very simple thing, that Indus Valley civilization की जो script है, the script of Indus Valley civilization does not guide us to create a good scenario or good picture of an Indus Valley civilization, but it is the social life or the material or the goods remaining that guide us about the correct view of Indus Valley civilization, Harappan life. This material could be pottery, tools, ornaments, household. As we all know that archaeology is the study of ancient material. So this material could be anything, like some pottery, like some tool, like some ornament, or some household objects also. So organic materials such as cloth, leather, wood, and reeds generally decompose. What do we know? That organic material like cloth, like wood, like reeds, and like leather, generally all these material decompose easily, especially in the tropical, sorry, especially, yes, especially in tropical regions. What survive are stone, okay? What survives are stone, burnt clay, metal, etc. Okay, the thing that not that does not ruin easily, that is stone, clay, burnt clay, or metal. These things does not usually do not usually ruin. It is also important to remember that only broken or useless object would have been thrown away. 100% it can be easily said that only broken or useless object would have been thrown away, and the good objects must have been kept into practice. Other things would probably have been recycled. Yes. So consequently, yes, consequently, valuable artifacts that are found intact, whether either lost in the past or hoarded and never retrieved. In other words, such finds are accidental rather than typical. So, what here the writer wants, the historian wants to say, that consequently, valuable artifacts that are found intact were either lost. 100% people, suppose that something is very valuable, suppose that some jewelry is very valuable for us right now. So what we will try, we will try to keep it very safe, very good for us. And if after 1,000 year or 2,000 year somebody finds the same jewelry, it means either it has been lost by us, or we have hoarded it, we have put it inside the, we have buried it inside the earth, but we forgot or we died, and later on, after thousands of years, when an excavation took place, then we found that thing, okay? Then somebody next found that thing. So these are the things that provide us a good example, good scenario of archaeological things. Then heading is 11.1,
First, classifying finds. What is the first problem that archaeologists face? This question comes that what kind of problem does archaeologists face while they reconstruct the past? So the first thing, classifying finds. Recovering artifact just the beginning of the archaeological enterprise. Archaeologists then classify their finds. One simple principle of classification is in terms of material, such as stone, clay, metal, bone, इवोरी ईटीसी. देखिए, जब जो पहली प्रॉब्लम आती है आर्कियोलॉजिस्ट के पास, जब वो हिस्ट्री बताते हैं, तो जो पहली प्रॉब्लम बेटा वो है कि हमें जो सामान मिला है खुदाई के दौरान, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सक्वेजन, द थिंग व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम इनसाइड द लैंड, इनसाइड द अर्थ, वी हैव टू क्लासीफाई इट. अब कैसे करेंगे? तो पहला प्रकार है कि हम उसको ईजिली कह सकते हैं कि भाई जो पत्थर की चीज़ है उसको एक तरफ रख दीजिए, जो मेटल की चीज़ है उसको एक तरफ रख दीजिए, जो प्लास्टिक की चीज़ है उसको एक तरफ रख दीजिए, जो बर्nt क्ले की चीज़ है, पकी हुई मिट्टी की वस्तुएं हैं, उनको एक तरफ रख दीजिए, या तो ऐसे जो कपड़े के बने हुए आइटम उनको एक तरफ रख दीजिए, या तो इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं. एम आई राइट? या फिर कैसे कह सकते हैं, ठीक है ना? द सेकेंड एंड द मोर कॉम्प्लिकेटेड इज इन द टर्म्स ऑफ फंक्शन. या फिर दूसरा तरीके से कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं उन चीज़ों को, उनके फंक्शन, उनके काम करने के तरीके पर. फॉर एग्जाम्पल, किचन में काम आने वाली चीज़ों को हमने एक तरफ रख दिया, वॉशरूम में काम आने वाली चीज़ों को हमने एक तरफ रख दिया, हमारी लॉबी में काम आने वाली चीज़ों को हमने एक तरफ रख दिया, टेम्पल में पूजा पाठ में काम आने वाली चीज़ों को हमने एक तरफ रख दिया. दो तरह से, या तो वो जिस चीज़ से बने हैं उस बेस पर वी कैन क्लासीफाई इट. अनदर ऑप्शन इज वी कैन क्लासीफाई दीज आर्टिफैक्ट्स, एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन. ओके, गुड. एन आर्टिफैक्ट इज टूल और ऑर्नामेंट और बोथ, समथिंग मीन्ड फॉर रिचुअल यूज. तो इस तरह करके हम उसको क्वालिफाई करते हैं, उसको क्लासीफाई. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट ऑफन शेप्ड बाय इट्स रिजेम्बलेंस विथ प्रेजेंट डे थिंग्स. और उस आर्टिफैक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है? मान लीजिए कोई ग्लास के शेप का कोई एक चीज़ है जो हमें मिला, वो आधा टूटा हुआ है, तो हम मॉडर्न टाइम के ग्लास को देख करके ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ग्लास रहा होगा. मान लीजिए कोई स्पून मिला, कोई ज्वेलरी मिली, ईयर रिंग्स मिले, ठीक है ना? तो उस समय की ईयर रिंग्स और इस समय की ईयर रिंग्स में ऑल्दो अंतर है, लेकिन उनके शेप को देख करके कहीं ना कहीं मॉडर्न ईयर रिंग्स जो हम देखते हैं उसके आधार पर हम ये एनालिसिस करते हैं कि नहीं, ये भी ईयर रिंग्स रहे होंगे. ठीक है? तो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट इज ऑफन शेप्ड बाई इट्स रिजेम्बलेंस विथ प्रेजेंट डे थिंग्स. Beads, quaints, stone plates and pots are obvious example. Archaeologists also try to identify the function of an artifact by investigating the context in which it was found. और कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट उस आर्टिफैक्ट का फंक्शन कैसे पता लगाते हैं, उसको पता लगाने के लिए वो ये देखते हैं कि ये कहाँ से पाया गया है. सपोज दैट कोई चीज़ उनको अगर मान लीजिए घर के आंगन से मिली, तो उनका ऐसा मतलब होगा कि वो चीज़ ज़्यादा यूज की जाती रही होगी, वो चीज़ आंगन खुले तौर पर ज़्यादा यूज की जाती रही होगी. ठीक है ना? अब कोई चीज़ अगर किसी के बेडरूम से मिल रही है, किसी के मतलब जहाँ पे उनकी ज्वेलरी का सामान रखा रहता है वहाँ से मिल रही है, तो ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि ज्वेलरी की चीज़ रही होगी. कोई चीज़ कुएं के आसपास से मिल रही है तो ये लगाया जाता होगा जो कुएं में यूज आता है सामान, कुएं से पानी निकालने में यूज होता है, वो वहाँ की चीज़ रही होगी. ठीक है ना? कोई मंदिर की चीज़ मिली होगी तो ये लगा होगा कि ये मंदिर की चीज़ रही है. तो जहाँ से जो चीज़ मिलती थी पुरानी, उसके बेस पर भी वो कोशिश करते हैं कि उसका फंक्शन डिक्लेयर कर सकें. तो पहली प्रॉब्लम क्या है? क्लासीफाई करने की. दो प्रकार का क्लासिफिकेशन मैंने बताया. पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मटेरियल, किस चीज़ का बना है, पत्थर का बना है, लोहे का बना है, किसका बना है, उस आधार पर क्लासीफाई करना. दूसरा उनके फंक्शन के आधार पर, किस पर्पज से यूज होता था, इस आधार पर क्लासीफाई करना. ठीक है ना? वॉज इट फाउंड इन अ हाउस, इन अ ड्रेन, इन अ ग्रेव और इन अ किन, कहाँ से मिला है. ठीक है ना? इससे भी, इस पर भी क्लासीफाई करते हैं. समटाइम आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू टेक रिसोर्स ऑफ इनडायरेक्ट एविडेंस. कभी कभी इनडायरेक्ट एविडेंस का भी सोर्स लेना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल थ्रू दो दे आर traces of cotton at some Harappan sites. To find out about the clothing, we have to depend on indirect evidence including
डिपिक्शन इन स्कल्पचर। ऑल्दो फॉर एग्जांपल के लिए क्या बताया गया, ऑल्दो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ प्लेसेस से जो कॉटन है उसके रेसे मिले हैं। कॉटन जानते हैं ना, एक प्रकार का, एक टाइप का क्लॉथ होता है, तो उस प्रकार से मतलब रेशे मिलते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, उस चीज़ को हमें आइडेंटिफाई करने के लिए इनडायरेक्ट एविडेंस का सहारा लेना पड़ा। इनडायरेक्ट एविडेंस क्या है, जैसे डिपिक्शंस इन स्कल्पचर, जो स्कल्पचर बनाया गया, जो स्कल्पचर बनता था उसमें जो उसको चित्रित किया गया है, जैसे कोई मूर्ति बनी, ठीक है ना, मूर्ति में अब जैसे काली जी की मूर्ति बनती है, देवी माँ काली की, तो आप देखते होंगे कि उसमें उनको साड़ी पहनाई जाती है, ठीक है ना, और कभी कभी मिट्टी की ही साड़ी बना देते हैं अच्छा सा लुक देने के लिए, तो उस साड़ी से पता चलता था कि ये कॉटन है। तो इसी तरह जो पुरानी मूर्तियाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन की मिलती हैं, जैसे मदर गॉडेस की मूर्ति, ठीक है ना, तो उस बेस पर वो लोग एनालिसिस करते थे कि ये जो मदर गॉडेस की मूर्ति है या जो अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, ठीक है ना, उस पर ये जो कपड़ा लगा है ये कॉटन का रहा होगा, ठीक है ना। ऑल्दो कहीं से हल्के हल्के सिम्टम मिले हैं कॉटन के कपड़े के, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली नहीं, हम इनडायरेक्ट रूप से उस चीज़ को समझते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डेवलप फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। We have seen that the first Harappan seal that was found not to be understood till archaeologists had a context in which it was placed, in which to place it, ठीक है ना। सबसे पहली बात क्या है कि आर्कियोलॉजिस्ट को क्या समझना पड़ता है कि फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, कोई चीज़ मिली है तो किस फ्रेम में रखा जाए इसको, है ना, इसको किस टाइप की चीज़ मानी जाए। जैसे एक शील मिली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो हड़प्पा से पहली शील मिली थी, ठीक है ना, तो उसको आर्कियोलॉजिस्ट यही नहीं समझ पा रहे थे कि किस कैटेगरी में रखें, ठीक है ना, बोथ इन द टर्म्स ऑफ अ कल्चर सीक्वेंस इन विच इट वाज फाउंड एंड इन द टर्म्स ऑफ अ कंपैरिजन विद फाइंड्स इन मेसोपोटामिया। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि इसको हम कल्चरल अचीवमेंट माने या इसको हम फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स का अचीवमेंट माने, ठीक है ना। चूँकि वो बनी थी, उसका कल्चर वैल्यू बहुत था, वो मतलब शील जो थी उसके अंदर जो पिक्चर था वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था कल्चरल रूप से, लेकिन वो पाई गई थी मतलब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से ट्रेड एंड कॉमर्स होने वाले प्लेस पर। जैसे मतलब हड़प्पा से तो मिली, हड़प्पन सील जो मिली, नहीं हड़प्पन सील बाद में मिली, लेकिन ये जो है, ये जो पहली सील इनको मिलती है हड़प्पा में, वो दिखाती क्या है कि ये कंपैरिजन विद फाइंड्स इन मेसोपोटामिया, वो मेसोपोटामियन से उसकी उसकी मतलब कंपैरिजन की जाती है, ठीक है ना। तो लोग को समझे कि इसको हम किस हिसाब से लें, मतलब मेसोपोटामियन से ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को समझें, या फिर हम उसको वी शुड अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर्यन हड़प्पन कल्चर। तो दैट वाज अ प्रॉब्लम। तो कई सारी प्रॉब्लम फंक्शन की आई, तो क्लासीफाइंग में भी दो टाइप की प्रॉब्लम आई। पहला क्लासीफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, और दूसरा क्लासीफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मटेरियल, और दूसरा क्या है, क्लासीफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन। फिर क्या है, फिर उस चीज़ को और क्या प्रॉब्लम आती है, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, किस संदर्भ में उसको यूज किया जाए, किस रेफरेंस में उस चीज़ को यूज किया गया है, ये डिफ़िकल्टी आई। जैसे सील मिली बताया नहीं, तो सील को हम किस हिसाब से समझें, उसको हम कल्चरल वैल्यू माने इंडस वैली सिविलाइजेशन की, कि वो फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स के पर्पज़ से उस चीज़ को यूज किया जाता रहा होगा, ये हम कन्फर्म नहीं कह पाते, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। देन क्या है 11.2 में क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, है ना। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि अब वो क्या चीज़ लिखी है, किस पर्पस से हम उसका कैसे इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। भाई पुरानी, अब आज से 1000 साल पुरानी चीज़ आपको मिल जाए, ठीक है ना, अब उसको आप कैसे इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, किस पर्पस से कर रहे हैं, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो द प्रॉब्लम्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आर परहैप्स मोस्ट एविडेंट इन अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थॉट that certain objects which seemed unusual or unfamiliar may have had a religious significance. Okay, the problems of archaeological interpretation are perhaps most evident in attempts to reconstruct religious practices. जब हम religious point of view, अब देखिए मदर गॉड की स्टैचू, ठीक है ना, जब हम religious point of view से सोचते हैं तो फिर वहाँ पर ये बताना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ये जो स्टैचू बना है या ये जो रिचुअल है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे बेटा ये मदर गॉडेस की स्टैचू, नीचे तो शील है, ठीक है ना, शील है, प्रोटोशिवा शील बताया था ना मैंने एक दिन की, एक मतलब भगवान शिव का सबसे पुराना एग्जाम्पल है, पुराना मतलब एक तरह से पिक्चर है। तो ये प्रोटोशिवा शील है जो मोहनजोदाड़ो से मिली है। इसमें देखिए शंकर जी को एक योगी के रूप में दिखाया गया है, और उनके ऊपर 2 सींग हैं और 4 मतलब जीव भी हैं, एक टाइगर है, एक एलिफेंट है,
ठीक है, और उसके अलावा एक राइनोकर्स है और एक बैल है ना। बैल, राइनोकर्स, टाइगर और एलिफेंट, ये 4 जीव हैं और ऊपर स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रोटोशिवा की सील है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और दूसरी बात यह है कि ये ऊपर मदर गॉडेस है। ठीक है ना, मदर गॉडेस अभी मैं बता रहा हूँ क्या है। ठीक है ना, तो द प्रॉब्लम्स ऑफ आर्कोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन और परहैप्स द मोस्ट एविडेंस इन अटेम्प्ट टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। लेकिन अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थॉट दैट द सर्टेन ऑब्जेक्ट्स विच सीम्ड अनयूजुअल और अनफेमिलियर मे हैव हैड अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस। स्टार्टिंग में सोचा गया कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो थोड़ा अनयूजुअल हैं या कम मिले हैं, ठीक है ना, जिनसे हम कम परिचित हैं, ये सब उनका रिलीजियस चीज़ों का रहा होगा। इस हिसाब से शुरू के आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सोचा। दीज इंक्लूडेड टेराकोटा फिगरीज ऑफ वुमेन हैवली ज्वेल्ड, सम विथ एलोबरेट हेड ड्रेस। ओके, अब देखिए ये क्या थी, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी, टेराकोटा ड्रेस। टेराकोटा मीन्स मिट्टी, पकी मिट्टी की मूर्तियाँ। ये पकी मिट्टी की मूर्तियाँ हुआ करती थी, हैवी ज्वेल्ड, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहने होती थी, और सर पर भी हेयर ड्रेसेस, ठीक है ना, और सर पर बाल बने होते थे, उसके ऊपर भी कोई कपड़ा पहने होती थी। ठीक है, तो ऐसा डिजाइन करके बेटा इनको बनाया गया है। और ये मूर्तियाँ मिली हैं कहाँ से, हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, लगभग हर जगह से ये मूर्तियाँ मिली हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये मूर्तियाँ मंदिरों में नहीं मिली। इंडस वैली सिविलाइजेशन से मंदिर का, टेम्पल का कोई सिम्टम नहीं है। ठीक है बेटा, ये मूर्तियाँ खुले में मिली हैं, मैदान में, पेड़ के नीचे, चबूतरे के ऊपर, ऐसे करके। ठीक है ना, तो ये मूर्तियाँ खुले मैदान में मिलती हैं। ठीक है ना, घरों से मिली हैं, लेकिन मंदिर से नहीं मिली, कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं है। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये रिलीजियस पर्पज से थी। ठीक है ना, जैसे अब भी हम गाँव जाते हैं तो गाँव में, गाँव के बाहर एक नीम का पेड़ होता है, फिर उसमें छोटे छोटे पत्थर रख दिए जाते हैं, उनकी पूजा होती है ना। तो उस तरह से लोग माने कि ये रिलीजियस वैल्यू का है। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने तर्क दिया कि ये हो सकती है टॉय हो, मदर गॉडेस टॉय के रूप में हो। ठीक है ना, और ये बच्चों के खिलौने के लिए बनाई जाती रही होंगी, ये भी एक पर्पज है, तो हम कंफर्म नहीं कह सकते। अच्छा, मदर गॉडेस दोनों टाइप की मिलती हैं, एंग्री मदर गॉडेस भी मिलती हैं और स्माइलिंग मदर गॉडेस भी मिलती हैं, है ना। तो ये एक तरह से शुरू में, स्टार्टिंग में क्या, इसको रिलीजियस सिग्निफिकेंस दिया गया। दीज इंक्लूडेड टेराकोटा फिगरीज ऑफ वुमेन हैवली ज्वेल्ड, सम विद एलेबरेट हेड ड्रेसेस। दीज वर रिगार्डेड एज मदर गॉडेस। इनको क्या नाम दिया गया बेटा, मदर गॉडेस का। रेयर स्टोन स्टैचुरी ऑफ मैन इन एन ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड पोस्चर, शील्ड विद वन हेड ऑन द नी। अब ये आ गया सच एज द पृष्ठ की। ठीक ना, अब ये दूसरी फिगर पर हम लोग आ गए, जो प्रोटोसिवा की हम डिस्कस कर रहे हैं, हम प्रोटोसिवा का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या है बेटा, दीज वर रिगार्डेड एज मदर गॉडेस, रेयर स्टोन स्टैचुरी ऑफ मैन, है ना। एक इसी तरह मैन की भी फिगर मिली है, एंड ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड पोस्चर। ठीक है ना, सीधे बैठे हुए पोस्चर में हैं, शील्ड विद वन हैंड ऑन द नी, और एक हाथ उनके नी पर है, ठीक है ना, घुटने पर। सच एज प्रीस्ट किंग, जैसे प्रीस्ट किंग के फिगर को आप देखिए ऊपर। ठीक है ना, वॉज ऑल्सो सिमिलरली क्लासिफाइड इन अदर इंस्टेंटेड स्ट्रक्चर हैव बीन असाइन। अच्छा, ये प्रीस्ट किंग का है, सॉरी। ठीक है ना, सिमिलरली वॉज प्रीस्ट किंग। ठीक है ना, एक और भी मिला है तो जो प्रीस्ट किंग जैसा है। अब आप पूछेंगे सर प्रीस्ट किंग क्या है, तो ये जो फिगर है आपके ऊपर, लेट मी सी, हाँ ये दिस वन, फिगर नंबर 1.23, फिगर नंबर 1.23 आप देखेंगे पेज नंबर 16 में, पेज नंबर 16 में फिगर नंबर 1.23 देखेंगे तो ये आपको पृष्ठ किंग का इमेज देगा। ठीक है ना, तो कुछ पृष्ठ किंग जैसी भी इमेजेस मिली हैं, तो जिसके बेस पर ये कहा गया कि ये भाई पृष्ठ किंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये भी रिलीजियस वैल्यू वाला है। फिर क्या हुआ, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, वॉज ऑल्सो सिमिलरली क्लासिफाइड इन अदर इंस्टेंट्स। अब देखिए पृष्ठ किंग में क्या कहा गया कि ये कोई पुजारी की मूर्ति है कि राजा की मूर्ति है। यहाँ भी लोग कन्फर्म नहीं हो पाए कि वेदर इट इज अ स्टैचू ऑफ अ प्रिस्ट और वेदर इट इज अ स्टैचू ऑफ अ किंग। ठीक है ना, तो वॉज ऑल्सो सिमिलरली क्लासिफाइड, ये भी दो सेंस में क्लासीफाई की गई। ऊपर जो मदर गॉडेस है ये भी दो सेंस में क्लासीफाई की गई कि एक खिलौने के रूप में या देवी के रूप में। इन अदर instances structures have been assigned ritual significance. These include the great bath and the fire altars found in कालीबंगा एंड लोथल। ठीक है ना, और कुछ जो ऐसी जगहें थी जो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनको हमने रिचुअल सिग्निफिकेंस दिया है, जैसे ग्रेट बाथ। लोग कहते हैं कि ग्रेट बाथ जो मोहनजोदाड़ो से मिला है वो ज़्यादातर किस पर्पज से यूज़ किया जाता था, जब कोई धार्मिक अवसर होता था, रिलीजियस रिचुअल होता था, तो उसमें आकर के लोग नहाते थे। आसपास जो चेंजिंग रूम बने थे वहाँ कपड़े बदलते थे। और कुछ फायर अल्टर्स,
जो हवन करने वाली वेदी होती है ना, जिसमें आग जलती है, हवन कुंड, तो उस तरह की चीज़ें भी मिली हैं कहाँ, कालीबंगा और लोथल से। Attempts have also been made to reconstruct religious belief and practices by examining seals, some of which seem to depict ritual scenes। ठीक है ना। अब जैसे हम इस सील की बात करें प्रोटोसिया वाले की, तो अभी आएगी चर्चा आगे। विथ प्लांट्स मोटिव्स आर थॉट टू इंडिकेट नेचर वर्शिप। ठीक है ना। अब देखिए, मैं अभी कल ही आपको बता रहा था ना, अदर्स विथ प्लांट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सील्स में दिखाई गई हैं। जैसे जैसे बहुत सारी सील्स में बड़े बड़े पेड़ मिले हैं, ठीक है ना, जो रिप्रेजेंट किए गए हैं, वो नेचुरल वर्शिप को दिखाते हैं। एनिमल की सील मिली है जिसमें सांप बना हुआ है, ठीक है ना, सच एज वन हॉर्न एनिमल, ठीक है ना, और एक सींग वाला मतलब पशु बना हुआ है, ठीक है ना। सम एनिमल सच एज वन हॉर्न एनिमल ऑफन कॉल्ड यूनिकॉर्न, ठीक है ना, एक सींग वाला जो मतलब पशु बना हुआ है अक्सर मतलब सीलों पर, ठीक है। तो depicted on seals seem to be mythical composite creature. In some seals a figure shown seated cross-legged, अब योगिक पोस्चर, ठीक है ना। कुछ ऐसी जैसे ये जो है, अब हम 1.27 की चर्चा कर रहे हैं, फिगर नंबर 1.27 वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, दैट देयर इज अ योगिक पोस्चर, ओके, समटाइम्स सराउंडेड बाय एनिमल्स। इन सम फिगर वी हैव फाउंड दैट yogi posture, I mean rishi or saint, has been surrounded by different kind of animals, has been regarded a depiction of Proto-Shiva, and it is considered that it is the ancient image of Proto-Shiva, okay, ancient image of Proto-Shiva. 1.27 is the ancient image of Lord Shiva, that is an early form of the major deities of Hinduism, ठीक है ना। Besides conical stones objects have been classified as lingas, एंड अच्छा, अभी हम शिव जी की पूजा कैसे करते हैं, शिव जी की कोई मूर्ति तो जल्दी से मिलती नहीं, लिंग मिलते हैं। तो ये देखिए फिगर नंबर 1.28, गेम्स मैन और लिंगास। अब जैसे लिंग मिले हैं, छोटे छोटे लिंग मतलब लिंगास मिले हैं, ठीक है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो इसको भी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने दो भागों में बांटा है। एक तो उन्होंने कहा कि ये तो गॉडेस शिवा को पूजे जाने के लिए यूज किए जाते थे। दूसरे लोगों ने कहा है कि ये मे भी हो सकता है कि मतलब चेस के जो जैसे एक खेल होता था उनका, उसमें पासे के रूप में, उसमें मतलब जैसे मतलब पासा नहीं होता है, मतलब जैसे गोटी होती है, उस रूप में इस चीज़ को यूज किया जाता था, ठीक है ना। तो इस रूप में भी यूज किया जाता था, ठीक है। तो लूडो, जैसे लूडो में हम खेलते हैं ना, तो क्या होता है, एक होता है हमारा क्यूब, ठीक है ना, एक पासा होता है, और बाकी जो गोटियां होती हैं चलते हैं जिससे हम, तो वैसे ये भी माना गया कि ये जो लिंगास हैं ये किसी गेम के इस तरह से मतलब कंपोनेंट्स रहे होंगे। देन many reconstructions of Harappan religion are made on the assumption of later traditional provide parallel with earlier ones, ठीक है ना। बहुत सारे assumptions हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनाई गई कैसे, पैरेलल, जैसे जो इंडस वैली हड़प्पन रिलीजन था उसी तरह से मतलब later traditional provide parallel with earlier ones. This is because archaeologists often move from टू नोन टू अननोन। क्यों? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट हमेशा नोन से अननोन की ओर खोजते हैं। कैसे? हमें अभी सब कुछ पता है, क्या है, ज़मीन कहाँ है, कैसी है, लेकिन हम अननोन की ओर जाते हैं। अब ज़मीन के अंदर क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या मटेरियल मिलेगा, उसका एनालिसिस करना। तो हमेशा याद रखिएगा, आर्कियोलॉजिस्ट ट्राई टू स्टडी फ्रॉम नोन टू अननोन, दैट इज़ फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रेजेंट से पास्ट की ओर चलता है। वाइल दिस इज प्लॉजिबल इन द केस ऑफ स्टोन कॉइन्स एंड पोस्ट, ठीक है ना, it becomes more speculative when we extend it to religious symbol। तो यहाँ पर स्टोन की बात की गई कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उनके बारे में एनालिसिस करना। लेट अस लुक फॉर इंस्टेंट द प्रोटोशिवा सील्स। द अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट, द ऋग्वेदा फ्रॉम 1500 to 1000 BC मेंशंस अ गुड नेम्ड रुद्रा, ठीक है ना। अब जैसे भगवान शंकर की पूजा, मान लीजिए हमने प्रोटोशिवा देखा, ठीक है ना, एक इमेज, मान लीजिए हम मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भगवान शंकर की पूजा होती थी, ठीक है, हम कंसीडर करते हैं। लेकिन अब क्या है कि ऋग्वेद में शिव नहीं कहा गया, ऋग्वेद में भगवान शंकर को शंकर या शिव नहीं कहा गया, वहाँ पर रुद्र नाम दिया गया। क्या नाम है? अ गुड नेम रुद्रा, विच इज़ नेम्ड यूज्ड फॉर शिवा इन लेटर पुरानिक ट्रेडिशन, जो बाद में लेटर पुरानिक ट्रेडिशन में शिवा के नाम से जाने गए। इन द फर्स्ट मिलेनियम सी, फर्स्ट एडी के आसपास आकर के उनको पुराणों में शिव कहा गया। हाउएवर अनलाइक शिवा, रुद्रा इन द ऋग्वेदा इज नाइदर डिपिक्टेड एज अ पाशुपति, ठीक है ना,
लॉर्ड ऑफ एनिमल्स इन जनरल एंड कैटल पर्टिकुलर, नॉर एज ए योगी। ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो ऊपर जो इमेज है 1.23, ठीक है ना, जिसको हम ये मान रहे हैं कि 1.27, इसको हम मानते हैं कि प्रोटोशिवा है, दैट इज द इमेज ऑफ प्रोटोशिवा। लेकिन बेटा कहीं भी ऋग्वेद में प्रोटोशिवा या इनका दूसरा नाम, प्रोटोशिवा का एक और नाम है पाशुपति, ठीक है ना, पाशुपति। ठीक है। तो कहीं भी ना तो पाशुपति वर्ड मिलता है ऋग्वेद में, ना ही प्रोटोशिवा मिलता है, ना शिवा मिलता है। वहाँ क्या मिलता है, रुद्र मिलता है। ठीक है ना। और ना ही इनको किसी जानवर से जोड़ करके देखा जाए। जैसे प्रोटोशिवा की इमेज देखिए, इसमें 4 जानवर बने हुए हैं। ठीक है। लेकिन इनको जनरली रुद्र को किसी जानवर से जोड़कर भी नहीं देखा जाता। गुड नेम रुद्रा विच इज अ नेम यूज्ड फॉर शिवा इन लेटर पौराणिक, हाउएवर अनलाइक शिवा, रुद्र इज इन ऋग्वेदा neither depicted as Pashupati, lord of animals, general and cattle in particular, nor as a yogi. In other words, this depiction does not match the description of Rudra Indra Rigveda. Is then possibly a shaman, as some scholars have suggested. ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है। जो ऋग्वेद के रुद्रा हैं और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रोटोशिवा हैं, उनके बीच में आपस में कोई सिमिलरिटी नहीं है। इसलिए पॉसिबली जो प्रोटोशिवा हैं इनको शमन माना गया है। शमन भी लोग कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको शमन नाम दिया है। शमन क्या है, समन आर मेन एंड वुमेन हु क्लेम मैजिकल एंड हीलिंग पावर, इसलिए इनको योगी कहा गया, योगी। ठीक है ना। तो शमन एक ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो मेन एंड वुमेन ऐसे योगी या योगिनी होते हैं जो मैजिकल पावर में मतलब एक्सपर्ट होते हैं, जो जादू करने में एक्सपर्ट होते हैं बेटा। ठीक है ना। और वो जादू करके हम बहुत ऐसे तमाम सारे रोगों को ठीक कर देते हैं। अब जैसे मुस्लिम धर्म में देखा जाए तो फ़कीर होते हैं, दरगाह होती है ना, लोग मन्नत मांगने जाते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं तो दरगाहों पर जाके चादर चढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो जैसे फ़कीर, उनके पास मैजिकल पावर होता है, किस लिए कि वो किसी भी रोग को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही बेटा शमन्स भी होते थे हिंदू धर्म में, जो किसी भी रोग को ठीक करते थे। ठीक है ना। एज वेल एज एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द अदर वर्ल्ड, और कुछ ऐसे उनके पास पावर होते थे कि वो अदर वर्ल्ड मतलब लॉर्ड से भी, भगवान से भी बात कर सकते थे। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ से समाप्त होता है। इस नीचे वाले एक्सट्रैक्ट को पढ़ लीजिएगा, गेम्समैन और लिंगा। ठीक है ना। ये क्या है, गेम्समैन है कि लिंगा है। ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा और फर्स्ट चैप्टर आपका ये समाप्त होता है। ये देखिए एक बुलक कार्ट का, टेरोकोटा कार्ट, एक बुलक कार्ट का बहुत प्यारा सा फिगर है। इससे क्या पता चलता है कि मे बी उस समय भी टेराकोटा मतलब कार्ट यूज की जाती रही हो। ठीक है। एक छोटा सा काम और है आपका कि आप इस टाइमलाइन को लिख लीजिएगा। ठीक है ना। ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है, इस टाइमलाइन को लिख लीजिएगा। ठीक है ना। टाइमलाइन 1, टाइमलाइन 2, इसमें एम.एस. वत्स का नाम आया है, तो इन्होंने दयाराम साहनी की मदद की थी। एम.एस. वत्स भी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, दयाराम साहनी मेन लीड कर रहे थे, लेकिन माधव स्वरूप वत्स या एम.एस. वत्स ने इनकी थोड़ी मदद की थी, इसलिए इनको भी माना जाता है कि इन्होंने हड़प्पा के एक्सकर्जन में साथ दिया था। ठीक है। तो दैट इज सफिशिएंट फॉर यू टुडे। आप लोग पढ़िए और ये फिगर्स को देखिए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। ठीक है। एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर, नाउ चैप्टर नंबर 2। ओके।